میں ہوں وارث اقبال، حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو اپنے پیاروں کو بھیجئے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے قطعات کے حوالے سے ویڈیو کا سلسلہ، مرزا محمود سرحدی کے قطعات کے حوالے سے، جو او لیول میں بھی ہے اور انٹر میں بھی ہے۔ یہ میں نے او لیول میں جو قطعات ہیں ان کے حوالے سے بنائے ہیں، لیکن مرزا محمود سرحدی کا جو انداز شاعری ہے اس کا بہت ہی اپنے لحاظ سے جامع انداز میں جائزہ لیا گیا ہے، اس لیے جن کے بھی نصاب میں مرزا محمود سرحدی کے قطعات ہیں ان کے لیے ویڈیو کا سلسلہ فائدہ مند ہوگا۔ میری کوشش ہوگی کہ یہ 2 ویڈیوز میں یہ مکمل ہو جائے۔ زیر مطالعہ قطعات کے مطالعے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم ان قطعات کے شاعر اور ان کے اسلوب کے حوالے سے ان کو اچھی طرح سے جان لیں، یوں ہمارے لیے قطعات کو سمجھنا آسان ہوگا۔ مرزا محمود سرحدی اردو شاعر تھے۔ چونکہ ان کی پیدائش صوبہ سرحد کے ایک شہر مردان میں ہوئی، اس لیے وہ اپنے نام کے ساتھ سرحدی لگاتے تھے۔ آج کل کے صوبہ خیبر پختونخوا کو پہلے صوبہ سرحد کہا جاتا تھا، اسی لیے وہ اپنے نام کے ساتھ سرحدی لگاتے تھے۔ فوج کی ملازمت چھوڑ کر وہ شعبہ تعلیم سے وابستہ ہوئے تھے۔ ادبی مزاج بچپن سے ہی پایا تھا، اس لیے اسکول میں ہی شعر کہنا شروع کر دیے تھے۔ جوں جوں عمر کا شجر بڑھتا اور پھلتا پھولتا رہا، ان کی شاعری بھی پھلتی پھولتی رہی، اور پھر محمود سرحدی اردو طنزیہ اور مزاحیہ شاعری کے میدان کے سالار بن گئے۔ اکبر الہ آبادی چونکہ طنزیہ اور مزاحیہ شاعری کے سپہ سالار ہیں، اس لیے محمود سرحدی کو اکبر الہ آبادی کی مناسبت سے اکبر سرحد بھی کہا گیا۔ عام طور پر طنز اور مزاح کے الفاظ کو ملا کر بطور ایک مرکب کے استعمال کیا جاتا ہے، مگر یہ 2 مختلف المعانی الفاظ ہیں۔ مزاح کے لفظی معنی ہنسی مذاق، جبکہ طنز کے معنی طعنہ یا چھیڑ چھاڑ کے ہیں۔ مشہور زمانہ مزاح نگار جناب سٹیفن لیکوک اپنی کتاب ہیومر اینڈ ہیومینٹی میں مزاح کی تخلیق سے متعلق لکھتے ہیں کہ مزاح زندگی کی ناہمواریوں کے اس ہمدردانہ شعور کا نام ہے جس کا فنکارانہ اظہار ہو جائے۔ بقول رشید احمد صدیقی، طنز و ظرافت کا شمار دنیا کے مہلک ترین اسلحہ جات میں ہوتا ہے۔ اس کے استعمال کا منصب ہر وقت ہر سپاہی یا پاپیادہ کو نہ ہونا چاہیے، بلکہ سپہ سالار کی خاص اجازت پر اور اس کی براہ راست نگرانی میں اس کو بروئے کار لانا چاہیے۔ گویا کہ طنز و ظرافت ایک بہت ہی خطرناک ہتھیار ہے شاعری کا۔ اب ہم قطع پر بھی غور کر لیتے ہیں۔ قطع اردو شاعری کی ایک اہم قسم ہے۔ بہت سے شاعروں نے قطعات لکھے جن میں علامہ اقبال اور اکبر الہ آبادی نمایاں ہیں۔ قطع لفظ قطع سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے توڑنا یا کاٹنا۔ بقول غلام یحییٰ حضور عظیم آبادی، کروں قطع الفت بتوں سے ولیکن یہ کافر میرا دل نہیں مانتا ہے۔ اسی طرح سے غالب کا ایک شعر بہت مشہور ہے، اس کا ذکر اگر نہ کیا جائے تو یہ شاید یہ موضوع مکمل نہ ہو۔ قطع کیجئے نہ تعلق ہم سے، کچھ نہیں ہے تو عداوت ہی سہی۔ تو یہ ہم نے
कता काटना तोड़ना के मायनी के हवाले से शेर दो बयान किए हैं। अब आते हैं शायरी की तरफ। कता बंद शायरी या कता शायरी जो है, ये शायरी की जो किस्म है कता 4 मिसरों पर मुश्तमिल शायरी की एक सिन्फ है, जिसके लिए अशार की तादाद की कैद नहीं है। अकबर इलाहाबादी ने 2 या 2 से ज्यादा भी लिखे हैं, यानी 2 से ज्यादा से मुराद अशार हैं, 2 या 2 से ज्यादा अशार भी लिखे हैं। अकबर का जिक्र हुआ तो उनका एक कता भी सुन लीजिए, फिर आगे चलते हैं कि छोड़ लिटरेचर को, अपनी हिस्ट्री को भूल जा, शेखो मस्जिद से ताल्लुक तर्क कर स्कूल जा, 4 दिन की जिंदगी है कोफ्त से क्या फायदा, खा डबल रोटी क्लर्की कर खुशी से फूल जा। ये मैंने इसलिए एक कथा पढ़ा है कि इससे आपको अकबर इलाहाबादी के अंदाज़े शायरी का थोड़ा सा इल्म हो जाएगा और उसका फ़ायदा ये होगा कि महमूद सरहदी को समझना आसान हो जाएगा। अगर हम यहाँ कथा की हैयत पर बात करें तो बात तवील हो जाएगी, इसलिए इतना ही कहना काफ़ी होगा कि कथा आज़ाद नहीं होता, बल्कि इसमें काफ़िए की पाबंदी लाजमी होती है। और हम ये कह सकते हैं कि रदीफ की पाबंदी गैर लाजमी है, यानी आप कर सकते हैं रदीफ की पाबंदी और नहीं भी कर सकते। अब आइए महमूद सरहदी के कतात का जायज़ा लेते हैं। इससे पहले मैं यहाँ एक बात वाज़ेह कर दूँ कि चूँकि ओ लेवल के पर्चे में शायरी की समझ की जांच सवालात के ज़रिए की जाती है, इसलिए होना तो ये चाहिए कि इस हवाले से सवालात के जवाबात दिए जाएं, लेकिन कितने सवालात के जवाबात दिए जा सकते हैं, इसलिए हम यहाँ उनकी शायरी के नुमायां पहलुओं को बयान करते हैं कि आपको महमूद सरहदी के बारे में पूछे गए सवालात के जवाबात भी मिल सकें। इसे आप इस तरह भी समझ लें कि जितना आपने अशार को बेहतर और गहराई से समझा होगा, उतना ही आप उन पर पूछे गए सवालात के जवाबात बेहतर तरीके से दे पाएंगे। दूसरी अहम बात ये कि इम्तिहान में जो भी सवाल पूछा जाए उसका ताल्लुक किसी न किसी तरह इन कतात से ही बनता है, इसलिए अगर ये कतात याद नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन इनके मौज़ूआत और इनके ज़रिए शायर के उसलूब की पहचान और बयान ज़रूरी है। यही हिकमत अमली हमने इन कतात के हवाले से महमूद सरहदी के कलाम और उसलूब को बयान करते हुए अपनाई है। सवालात का सुनकर परेशान न हो, आप समझें कि ये शेरी तफहीम है और इसी तरह के सवालात पूछे जाते हैं, बस थोड़ा सा सोच को ज़रा ज़्यादा ज़हमत देना पड़ती है। चूँकि सवाल 15 नंबर का होता है, इसलिए इसके जवाब में अच्छा खासा मवाद दरकार है और जवाब में सिर्फ एक कते के मौज़ूआत बयान करके बात नहीं बनेगी। इसलिए ज़रूरी है कि पूछे गए सवाल के मौजू की मुनासबत से एक से ज़्यादा कतआत के मौज़ूआत से बहस की जाए। महमूद सरहदी के हवाले से ये काम 2 वीडियोस पर मुश्तमिल है, क्योंकि एक वीडियो में सारे कतात का जायज़ा मुमकिन नहीं। दूसरी वीडियो के इख्तिताम पर हर कते की मुनासबत से पूछे जाने वाले मुमकिना सवालात भी दे दिए गए हैं। महमूद सरहदी पर एक बहुत अहम सवाल पूछा जाता है कि उन्हें अकबर सरहद क्यों कहा जाता है, तो ये हम देखते हैं कि महमूद सरहदी बहैसियत अकबर सरहद, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि महमूद सरहदी की शायराना खिदमात का एतराफ़ करते हुए उनकी शायरी पर तहकीक करने वालों ने उन्हें इस दौर का अकबर कहा, इसलिए कि अकबर इलाहाबादी ने भी
अपने दौर में तहजीब नौ की जफाकारियों पर अपनी शायरी के तंज के नश्तर चलाए थे। यही काम महमूद सरहदी ने भी किया। उनकी शायरी को देखते हुए अंदाजा होता है कि वो अकबर इलाहाबादी का अक्स हैं। उनकी शायरी पर अकबर इलाहाबादी की गहरी छाप दिखाई देती है। यहाँ मैं एक टीचिंग स्ट्रेटजी आपको बता दूं कि जो लफ्ज आप समझते हैं कि ये ज़रूरी हैं, जैसे तंज हो गया, तंज के नश्तर हो गया, जफाकारियों हो गया, वो आप पोस्टेड पर लिख लें और लिख के तो अपनी स्टडी टेबल पर या अपने दीवार पर कहीं लगा दें। और उससे ये होगा कि जब आप ये वीडियो सारी देख लेंगे तो उसके इख्तिताम पर आप हर दूसरे दिन 4-5 लफ्ज उसमें से ज़हन नशीन कर लिए। यूं आप उन लफ्ज़ों के ज़रिए से आप खुद ब खुद इन कतात के सवालात के जवाबात आसानी से देने के काबिल भी हो जाएंगे। अच्छा जी, तंज को मज़ाह के लिबादे में लपेट कर पेश करने वाला शायर दरअसल वो अहले फ़िक्र होता है जिसे वो सब कुछ दिखाई देता है जो अक्सरियत को दिखाई नहीं देता, या यूं कहिए कि देखते तो सब हैं लेकिन बयान करने का हौसला नहीं रखते। या आप यूं भी कह सकते हैं कि देखते तो सब हैं और शायद बयान करने का हौसला भी रखते हैं लेकिन बयान करने का सलीका नहीं रखते। ये सलीका बहुत अहम है लफ्ज, ये बड़ा अहम लफ्ज है सलीका। सलीका का मतलब है उसलूब, तरीका, शायरी करने का तरीका। अकबर इलाहाबादी में वो सलीका था कि उन्होंने अपनी नई तहजीब की मुलम्माकारियों पर कारी ज़रब लगाई और कौम के हर उस पहलू को तनकीद का निशाना बनाया जो उसे असलाफ की अकदार से दूर ले जाता था। अकबर इलाहाबादी ने अपने एक बंद में बेपर्दा बीबियों का जिक्र किया है। अगर आप अकबर इलाहाबादी पे थोड़ी सी सर्च करें तो आपको ये उनका बंद मिल जाएगा। ये बेपर्दा बीबियां जो हैं ये मुतासिरे तहजीब नौ नहीं बल्कि मुतासरीन तहजीब नौ थी। इसी तरह और काफी हद तक इसी अंदाज में महमूद सरहदी ने अपने दौर के उन नौजवानों पर कारी तंजिया हथियार इस्तेमाल किए हैं जिनकी शक्लों और हुलियों को तहजीब नौ ने इस तरह मुतासर किया है कि उनको देखकर वही जज्बात और एहसासात पैदा होते हैं जो पनाह गजीनों यानी बेवतनों को देखकर होते हैं। तो वो अपने इस कते में फरमाते हैं कि कभी तो उनकी हसीनों से शक्ल मिलती है, कभी पनाह गजीनों से शक्ल मिलती है। खुदा की शान से हैं वो मेरे वतन के जवां कि जिनकी पर्दा नशीनों से शक्ल मिलती है। इस बंद की खूबसूरती ये है कि ये फिलहाल तो हर दौर के नौजवान की अक्कासी करता है। एक दौर था कि नौजवानों में हिप्पी बनने का बहुत रुझान था, बड़े शहरों में बहुत ज्यादा हिप्पी थे। हिप्पी तो खैर अब चले गए मगर उनके असरात अभी भी मौजूद हैं। नौजवानों की स्याह घंघोर जुल्फें, कानों में बालियां, हाथों में रंग बरंग कड़े, गर्दनों में जर्क बर्क नकली मालाएं, खवातीन जैसे मेकअप और जाने क्या क्या, उन पर बीबा होने की बजाय बीबी होने का शायबा होता है। आपको पता है ये बीबा लफ्ज जो है ये पंजाबी में इस्तेमाल होता है बड़े अच्छे होनहार बच्चे के लिए, तो हम उन्हें बीबा नहीं कह सकते बल्कि बीबी कहेंगे। और खास नुक्ता ये है कि जिन्होंने बाहर निकलकर घरों और वतन के उमूर को संभालना है वो पर्दा नशीनों की सूरत इख्तियार किए हुए हैं। तो यूं हमारे मुस्तकबिल की नस्ल भी मुश्किल हालात से दो चार है। दूसरी तरफ पनाह गजीनों के लिबास कटे फटे होते हैं, बाल बेतराश व खराश झाड़ियों की तरह बढ़े होते हैं और शक्लों पर रातों के जागने के मोहलिक असरात नुमाया होते हैं। अगर हम अपने देश के नौजवानों को देख लें तो हमें बिला झिझक उन्हें देखकर पनाह गजीन कहना पड़ेगा। महमूद सरहदी में अकबर ही की तरह एक खूबी ये भी थी कि वो अपने तंज को वुसअत देते हुए नए तरीके से बयान कर देते हैं।
इसी बंद में वो अपनी कौम के नौजवानों की हुलियों और शक्लों पर तंज करते हुए कहते हैं कि मुझे तो यूं लगता है जैसे ये मर्द नहीं बल्कि पर्दा नशीन बीबियां हैं। इस किस्म की अक्कासी वो अपने एक और शेर में इस तरह करते हैं कि पुकारने का करीना मैं सोचता ही रहा, हसी कहूं कि हसीना मैं सोचता ही रहा। महमूद सरहदी के कतात ओ लेवल के निसाब के मुताबिक के हवाले से ये पहली वीडियो थी। दीगर कतात से मुतल्लिक मवाद आपको इस सिलसिले की दूसरी वीडियो में मिलेगा, इसलिए महमूद सरहदी के कतात की समझ के लिए ज़रूरी है कि ये दोनों वीडियोस भी देखी जाएं, इसलिए इस सिलसिले की दूसरी वीडियो ज़रूर देखिए। ये पहली वीडियो देखने का शुक्रिया। उम्मीद है कि आपको ये छोटी सी काविश पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, और अगर आपने ये चैनल पहले सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ये सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को बताइए। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं दूसरी वीडियो में।